Welcome to the uh, machine design course. So it is mechanical engineering design. Uh, Mostly in this subject, we are dealing with the designing of different mechanical components. Okay, so that's why its name is mechanical engineering design, because in agricultural engineering we have one of our main side of machinery in which we are dealing with different agricultural machineries. So the designing of different mechanical components of that machineries will be discussed in this course. Okay, so today we will just discuss the course objectives, then the course learning outcomes, and the lecture plans, recommended books, and then we will have different outlines. Okay, again, it is a kind of introductory lecture, so we will have some theoretical background of mechanical engineering design, the types of designs, the different phases of designs, and the factors which we are considering during the designs. Okay, see, being an engineer, we will have to design an effective and efficient मैकेनिकल कंपोनेंट. ठीक है, आप देखेंगे ना कि मशीनरी में हमारे पास जो डिफरेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर बेटर efficiency and for effective works. Okay, so the objective of this course are just to familiarize you people to the concepts and skills of machine design. ठीक है कि मशीन डिज़ाइन में कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, सिंपल मैकेनिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और अगर आप कोई मैकेनिकल कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए कंसेप्ट क्या रिक्वायर्ड होगा, कौन से पैरामीटर्स हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, देखिए, मशीन जो होते हैं हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली हमारे पास जो मैकेनिकल मशीनरीज हैं दे आर डीलिंग विद द मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के साथ डील करते हैं. तो हमारे पास बेस्ड ऑन दी दैट एनर्जी तीन टाइप्स ऑफ मशीनरीज है. एक दोज मशीनरीज होते हैं जो एनर्जी को जनरेट करता है. ठीक है, जो एनर्जी को डेवलप करता है, एनर्जी को जनरेट करते हैं. दूसरी टाइप्स ऑफ मशीन ये होते हैं जो एनर्जी को सप्लाई करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ट्रांसमिट करते हैं ना एनर्जी को. और थर्ड टाइप्स ऑफ मशीनरी जो होते हैं वो हमारे पास एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं. सो थ्री टाइप्स ऑफ मशीनरीज होते हैं. those type of machines which are developing the energies, generating the energies, converting other form of energy into mechanical energy. Remember, in this subject, mostly we will be dealing with those machineries which are generating or transmitting or utilizing the mechanical energy. Okay, so here in machine design we are dealing with those machineries who are generating or developing or converting other form of energy into mechanical energy. Then see, that is the point of generation. यहीं पे हम एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते, एनर्जी कहीं दूसरी पॉइंट पे यूटिलाइज होगा, कि कहीं दूसरी पॉइंट पे यूज होगा. so then we have to transmit the energy from point of from point of generation to point of utilization. so उसके लिए ट्रांसमिशन सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, शॉफ्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बेल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, गियर्स रिक्वायर्ड होते हैं, चेन्स रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, और फिर जो है हमारे पास सच टाइप ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड होती है जो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं सम यूजफुल वर्क के लिए. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी तो हम कन्वर्ट कर दी ना अदर फॉर्म से, इलेक्ट्रिकल फॉर्म से, सोलर जो फॉर्म से, जो भी फॉर्म है उससे हमने कन्वर्ट कर दी मैकेनिकल फॉर्म में. फिर एनर्जी को हमने ट्रांसमिट करना है और फिर एनर्जी को हमने यूटिलाइज करना है फॉर सम बेनिफिशियल पर्पसेस, ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए हमने फिर एनर्जी को यूटिलाइज करना होगा. सो इन दिस कोर्स वी विल बी trying to develop the concept and skills of machine design.
ठीक है, of various simple components of the machine design. And these are the course learning outcomes. Okay, that first you will be able to define the basic nomenclature, terminologies, the principles, the basic techniques and fundamentals of the mechanical engineering design. That what type of steps are involved, what are the design considerations, what factor will be considered, what are the design cycles, what are the different types of cycles, what are the different parameters which will be considered. Okay, so first you will have some background knowledge, first you will have some basic principle knowledge. Okay, then based on that principle knowledge you will be able to discuss the construction and working of different machine elements. एक तो आपके पास बेसिक आइडिया आ जाए ना, फिर उस बेसिक आइडिया की बेस पे आप जो है डिटेल पे जाएंगे कि किसी इक्विपमेंट को हम किस तरह डिस्कस कर सकते हैं, किसी इक्विपमेंट को किस तरह हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी इक्विपमेंट की जो एनालिसिस होता है, उसकी इवैल्यूएशन होता है, उसकी मैथमेटिकल प्रूफ्स जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट यू विल हैव द बेसिक नॉलेज. फॉर एग्जांपल, अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं कि सपोज अगर मशीन डिजाइन में हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो शॉफ्ट्स होते हैं. दैट इज वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट, शॉफ्ट है. सो फर्स्ट आप लोगों को शॉफ्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि शॉफ्ट क्या चीज है, किस पर्पस के लिए यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है. आइदर जनरेटिव कंपोनेंट है, ट्रांसमिशन कंपोनेंट है, यूटिलाइजेशन कंपोनेंट है. So first you will have the basic idea of the shop, then in detail you will study that what are the working principle of shop. अगर shop transmission component है तो ये एनर्जी को किस तरह ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कौन से मटेरियल से बने होते हैं, कितने स्ट्रेंथ पे ये फेल हो सकते हैं, उसके डायमेंशंस क्या होंगे, इसके टाइप्स क्या होते हैं. So then we are going into detail. So we will be discussing the construction and working principles of different mechanical components. And after that, the techniques, the principles or the construction and working of different mechanical element which you have understand in these two steps, then it will be applied practically for the designing of different mechanical components, just to design the most effective and efficient mechanical element. Okay, so these are the course learning outcome that at first you will be able to define the basic concept of the machine design. Then you will be able to discuss. I mean, discuss is a kind of superior stage than the define. Okay, so you will be able to discuss and explain the working and constructive principles of different mechanical elements, and then you will be able to apply the different procedures that how we can design the different parameters of the mechanical components. Okay, and as this will be the grading criteria as usual: 50% final term, 20 med and 30 sessional. Okay. And these will be our course outline which will be following. In this first lecture we will discuss the meaning of mechanical engineering design, the phases of design and design considerations. Then we have the other topics, like whenever you are designing any mechanical component, so we are looking into its safety and reliability. Okay, that how much the product will save, how much is the percentage of the how much is the chances of the working of the element without failure. कि एक प्रोडक्ट आप डिजाइन करते हैं ना, एक एलिमेंट आप डिजाइन करते हैं, तो उसकी चांसेस कितने हैं कि वो विदाउट फेलेवर जो है वो अपना काम करेगा. फिर डिजाइनिंग में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोड्स होते हैं विच वी हैव टू फॉलो. तो ये जो फर्स्ट 2 वीक्स है ये डिजाइन की बेसिक्स हैं. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द construction and working principles and designing parameter of shafts हैं, clutches होते हैं, bearings हैं, gears हैं, ठीक है, pulleys हैं. These are the different basic mechanical element. जिस तरह हमारे पास different machineries है ना, अगर vehicle आप ले ले उसमें clutch लगा होता है, जब आप gear change करते हैं तो आपने clutch pedal को press करना होगा. Similarly bearings होते हैं,
उसका डिफरेंट फंक्शंस है, गियर्स हैं, पुलीज हैं, ठीक है। ये जो आप लोगों ने देखे होंगे, ये थ्रेड्स होते हैं हमारे पास, स्क्रूज जो होते हैं, ठीक है, बोल्ट्स हैं, जॉइंट्स होते हैं इन बिटवीन टू मैकेनिकल कंपोनेंट्स, डिफरेंट कीज होते हैं, ठीक है, चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव्स हैं। जिस तरह साइकिल में जो चेन लगा होता है ना, एक्चुअली चेन क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिट करते हैं ना पेडल से रेयर व्हील तक। सो चेन इज अ काइंड ऑफ पावर ट्रांसमिशन कंपोनेंट. So in this course, our key objective is to discuss the basic simple mechanical components. कि उनका वर्किंग किस तरह होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड दी रिकमेंडेड बुक इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, लाइब्रेरी में अवेलेबल है, 5th एडिशन बाय शेगले, ठीक है। बाकी जो है दीज आर दी reference books. These are the lecture hours from 11:10 to 12:30. Then we have a break. Then 12:50 to 2 p.m. Okay. Now again, let's start from the cracks. Yeah, let's start from the some basics. That what is engineering, then what is technology, what is agricultural engineering, then what is the real role of machine design in agricultural engineering. Okay, so we will go step by step from basics into the advanced level. Okay. So see, as we know that engineering is a profession or work of designing new products. See, again, we have another branch of knowledge which is called the science. So science is a kind of development of knowledge. वो a kind of theoretical knowledge है, जिसकी बेस पे वो क्या करते हैं, साइंस में क्या करते हैं कि साइंस में कोई न्यू थ्योरी ले आते हैं, कोई न्यू आइडिया ले आते हैं, एंड देन इन इंजीनियरिंग वी आर अप्लाइंग द principle of science for the benefit of mankind to develop some new technology, to develop some new product, to design some new product. See, engineering या engineers works on the principle of science. साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो आइडियाज डेवलप करते हैं, वो न्यू थ्योरीज डेवलप करते हैं, ठीक है। वो थ्योरेटिकल साइड है। इंजीनियरिंग जो है वो प्रैक्टिकल साइड है. The ideas and theories which are developed by the scientists, the engineers are applying their theories and ideas for the practical development, for the practical designing of new products for the benefits of mankind. ठीक है. So engineering is the application of mathematics, empirical evidence, and scientific, economic, social, and practical knowledge in order to invent. Invent mean कोई कोई नई चीज जो है इन्वेंट करना, इनोवेशन. एक इनोवेशन है और एक इन्वेंशन है. इनोवेशन मीन टू मेक चेंजेस इन समथिंग एस्टेब्लिश्ड. मीन अगर ऑलरेडी एक चीज है और उसमें आप चेंज करके किसी दूसरी पर्पस के लिए उसको यूज कर लें, तो ये इनोवेशन है. इन्वेंशन जो है एक न्यू चीज होता है, ठीक है, कि बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नॉलेज आप कोई न्यू चीज इन्वेंट कर ले. इनोवेशन ये है कि एक चीज ऑलरेडी डेवलप्ड है और उसमें आप चेंजेस करके किसी दूसरी पर्पस के लिए यूज कर ले, ठीक है. डिजाइन अगेन दैट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नॉलेज. इफ यू डिजाइन के थ्योरेटिकल आइडिया को आप प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर ले. बेल्ट जो है अगेन दैट इज अ काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट इज अ काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मेंटेनेंस है, ठीक है. कल ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और उसमें कोई डिफॉल्ट आ जाए तो उसको आप किस तरह मेंटेन करेंगे. एंड रिसर्च एंड इंप्रूव स्ट्रक्चर, मशीन, टूल, सिस्टम, कंपोनेंट, मटेरियल, प्रोसेसेस एंड organization. So simply we can say that engineering is the application of mathematical and scientific knowledge to invent, innovate, design, and build something for the benefits of mankind. So engineering is a kind of
profession. It is a kind of practical work in which we are applying the principle of science for the benefit of mankind. So engineer design materials, structures, and system while considering the limitation imposed by practicality, regulation, safety, and cost. Now this is most important. Okay, that you will be inventing, innovating, designing, building something, but you will have to keep some limitation. इस तरह नहीं है कि आप एक चीज डिजाइन कर ले और वो डेंजरस हो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, जो भी चीज आप डिजाइन करते, इन्वेंट करते, वो प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल होगा सोसाइटी में और इन्वायरमेंट में। इस तरह ना हो कि उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए। ऑल्सो इट विल बी सेफ एंड द कास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कास्ट है। अगर आप बेस्ट से बेस्ट चीज डिजाइन कर, लेकिन अगर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर उसकी वैल्यू जीरो होगी। Okay, so engineering is the application of mathematics and scientific knowledge to develop something new for the benefit of mankind while considering the practicality, safety and cost. ठीक है, अगर बेस्ट से बेस्ट चीज आप डिजाइन कर लेना, अगर वो इन्वायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, ह्यूमंस के लिए वो खतरा हो, तो फिर या उसका कास्ट उतना ज्यादा हो कि लोग उसको अफोर्ड ना कर सके, या एक चीज इस तरह कि वो प्रैक्टिकल आप उसको फिर यूज नहीं कर सकते, तो फिर उस डेवलपमेंट के कोई फायदा नहीं है। सो दीज आर द लिमिटेशंस। ठीक है, सो ये चीजें जो है आप अभी से अपना माइंड डेवलप करते जाए, हम मशीनरी की तरफ जाएंगे ना। सो मशीन डिजाइन या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, it will be a kind of application of mathematics and science to develop and design some mechanical machineries in agricultural field for the benefits of mankind within the limitation of practicality, safety and cost. ठीक है, so it is a profession in which the knowledge of mathematics and science gained by study, experience and practice. See, science जो है वो स्टडी से आ जाता है, एक्सपीरियंस से आ जाता है, प्रैक्टिस से आ जाते हैं। सो जो नॉलेज है आपके पास मैथमेटिक्स और साइंस का, उसको आपने अप्लाई करना है टू डेवलप समथिंग न्यू फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। अब जो हम बात करते हैं ना, टू डेवलप समथिंग न्यू, ये समथिंग क्या होगा? ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स होंगे, मैकेनिकल मशीनरीज होगा। अगर आपके माइंड में इस तरह कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम एक ऐसी मशीनरी डेवलप कर सकते हैं जिससे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को फायदा हो, सो इट विल बी अ काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर दूसरा टर्म हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी। एक इंजीनियरिंग है और एक टेक्नोलॉजी है। सो इंजीनियरिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इनोवेशंस करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, एक न्यू चीज जो है प्रैक्टिकल उसको डेवलप करते हैं। अब टेक्नोलॉजी क्या है? सी, इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, टेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? जो चीज आपने डिजाइन किया हुआ है इंजीनियरिंग में, जो चीज आपने डेवलप की है, अब उसको किस तरह यूज करेंगे, दैट इज टेक्नोलॉजी। समझ आ रहे हैं? सी, अब किसी ने मोबाइल डेवलप किया हुआ है ना, मोबाइल किसी ने डेवलप किया हुआ है, तो उसको किस तरह मैन्युफैक्चर किया गया है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को किस तरह मैन्युफैक्चर किया गया है, उसको किस तरह असेंबल किया गया है, दैट इज इंजीनियरिंग। अब हम जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो नॉलेज है ना मोबाइल फोन यूज करने का, दैट इज टेक्नोलॉजी। हम मोबाइल फोन डेवलप नहीं कर सकते, हम मोबाइल फोन की इंजीनियरिंग नहीं जानते, लेकिन मोबाइल फोन के टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। सो द यूज ऑफ द डिजाइन प्रोडक्ट या द यूज ऑफ द डेवलप्ड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी इज द again that is a kind of skills, that are a kind of techniques or principles or methods and process which are used to achieve the objective from the scientific investigation.
इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो साइंटिफिक थ्योरीज की बेस पे कोई चीज डेवलप करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी क्या है कि जो चीज डेवलप्ड हुआ है, जो चीज डिजाइन हुआ है, उससे हम फायदा किस तरह हासिल करेंगे, उसको हम किस तरह यूज करेंगे, ये टेक्नोलॉजी है। अब गाड़ी, व्हीकल जो है ना, एक मोटर कार है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो डिजाइंड है, दैट इज इंजीनियरिंग। अब हम गाड़ी को किस तरह ड्राइव करते हैं, तो इसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं ना। सो ये स्किल्स जो है ये टेक्नोलॉजी है कि आप गाड़ी को ड्राइव कर सके, दैट इज टेक्नोलॉजी। द ऑपरेशन ऑफ द engineered product, that can be called a technology. So the distinction between science is a kind of theoretical investigation about the nature, and engineering is the application of that scientific knowledge, and technology is the use of that designed product based on the scientific investigation. So ये तीनों जो है ये interconnected है. So science is that investigation or study of natural phenomena just to discover some principles and some new techniques. And engineering is a goal-oriented process in which we are designing and making some tools, designing some products, okay, for the practical human beings. And technology is the consequences of science and engineering. ये उनके results हैं कि एट द एंड आपके पास एक आइटम आ जाता है, फिर आप उसको यूज करते तो ह्यूमन को उससे फायदा हो जाता है। तो दैट इज टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट तीनों का? जी क्लियर है सर। अच्छा, आर यू पीपल दियर? भागना नहीं है, ठीक है? इस तरह नहीं है कि मैं यहाँ पे लेक्चर देता रहूँ और आप लोग कई आवर बिजी हो। अच्छा, अब आ जाए अपनी फील्ड की तरफ। That was just a general concept about the engineering and technology. So now we have the agricultural engineering. So in agricultural engineering, we are applying the scientific and mathematical knowledge to improve the net output value. See, anything which we are getting from field or farm, we have two terms which we are using mostly. One is the field, and second one is farm. So field is a single piece of land in which we are growing crops, or in which we have trees or plantation etc. ठीक है, एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है ना लैंड का जिसमें क्रॉप्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। प्रैक्टिकली एक एक क्रॉप होगा, उसमें प्लांटेशंस होंगे, उसमें ट्रीज होंगे, उसको फील्ड कहते हैं। फार्म जो होते हैं ये एक लार्जर कॉन्सेप्ट है फील्ड से। उसमें हमारे पास बिल्डिंग्स भी हो सकते हैं, फील्ड्स भी हो सकते हैं, अदर स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। तो फील्ड से हमारे पास क्या आएगा, वी कैन से दैट फॉर एग्जांपल व्हीट, मेज, राइस, ये चीजें हम अटेंड करते हैं ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फार्म से हमारे पास जो है अगेन वही फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये भी आ सकते हैं, लेकिन साथ साथ में अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म है तो हमारे पास क्या आएगा, मीट आएगा। अगर डेयरी फार्म है तो उससे वी कैन गेट milk and meat and cheese etc. So anything which we are getting from field and farm, that is called the agricultural product. ठीक है, अब इन चीजों को हम क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं। नाउ की ऑब्जेक्टिव क्या है एग्रीकल्चरल इंजीनियर का, ये जो हमारे पास एट द एंड पैसे आ जाते हैं ना, एनीथिंग व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम फील्ड एंड फार्म, इफ वी सेल इट इन द मार्केट, सो वी विल गेट सम वैल्यू, वी विल गेट सम रिटर्न, हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द आउटपुट वैल्यू। The money which we are getting from the agricultural product, that is called the output value. Now what is the key objective, agricultural engineer का key objective क्या होगा, just to increase this output value. Anything which we are getting from field and farm, हम ये चाहते हैं कि इससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हम ऑब्टेन कर ले, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हम ऑब्टेन कर ले। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा,
हमने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना होगा। जब आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले और उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर ले तो मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आप किस तरह प्रोड्यूस करेंगे? अगेन यू विल हैव टू डेवलप व्हाट, सम टेक्नोलॉजी। आपने मशीनरी डेवलप करना होगा, आपने कोई न्यू डिजाइनिंग करनी होगी, कोई न्यू इन्वेंशंस करनी होगी कि आप जो प्रोडक्ट फीड और फॉर्म में प्रोड्यूस करें वो हो और वो उसकी क्वालिटी मेंटेन हो जाए। So the application of the scientific and mathematical knowledge to improve the output value of the agricultural product. Now ये जो सिंपल यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ना, ये पूरा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को डिफाइन कर रहा है। टू इम्प्रूव द नेट आउटपुट वैल्यू। नाउ आउटपुट वैल्यू जो है ना, ये प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, उसकी जो बेनिफिट्स है, उसकी जो प्रॉफिट्स है, उसको आप किस तरह इंप्रूव करेंगे। तो उसके लिए आप जो भी स्टेप उठाएंगे ना, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल नॉलेज, इट विल बी कॉल्ड द एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रॉपरली सोविंग करते हैं क्रॉप्स के, तो उसके लिए अपने एरिया को प्रिपेयर करना होगा, प्रॉपरली लेवल करना होगा, प्रॉपर ट्रैक्टर यूज करने होंगे, प्रॉपर मशीनरी यूज करनी होगी, बेस्ट क्वालिटी सीड यूज करना होगा, टाइम टाइम पे आपने उसको वाटर प्रोवाइड करना होगा, एक्स्ट्रा और अनवांटेड प्लांट्स जो है उसको रिमूव करना होगा, फर्टिलाइजर्स अप्लाई करने होंगे, फिर प्रॉपरली उसकी कटिंग करनी होगी, फिर प्रॉपरली उसकी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज और पैकिंग करना होगा। तो तभी उसकी वैल्यू बेस्ट होगी ना, ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। सो ये जितने भी प्रोसीजर्स मैंने आपको बताए और जितने आपके माइंड में आ रहे हैं, इसको हम टेक्नोलॉजी की बेस पे किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आप कौन कौन से इक्विपमेंट या मशीनरी या टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। So their development will be based on scientific and mathematical knowledge, and that is called the agricultural engineering. ठीक है। So the agricultural engineering is that planning, supervising and managing the scheme of irrigation, drainage, flood, water control, farm machinery. Specifically we are dealing with this thing in this subject. ठीक है। सो जब भी आप आउटपुट वैल्यू को इंप्रूव करते हैं ना, तो किस तरह इंप्रूव करेंगे? यू विल हैव टू प्लान, सुपरवाइज एंड मैनेज द इरिगेशन सिस्टम, द ड्रेनेज सिस्टम, द फ्लड कंट्रोल। यू विल हैव टू डेवलप द मशीनरी and you will have to do the environmental assessments. Then at the end you will have the best quality product. So agriculture engineering involves the discipline like मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, दो साइड्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एक जो है मेजर वो फॉर्म मशीनरी है कि आप बेस्ट से बेस्ट मशीनरी डेवलप करके उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर लें, तो तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का? यस सर। अच्छा, अब आ जाए मशीन की तरफ। सी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जिस तरह मैंने आपको बता दिया ना कि हम की ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की वैल्यू हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं? एक साइड जो है वो ये है कि हम बेस्ट एंड एडवांस मशीनरी डेवलप कर ले, डिजाइन कर ले और उसको यूटिलाइज कर ले। तो अब आ जाए मशीन की तरफ कि मशीन क्या है। So machine is a tool containing one or more part that uses energy to perform an intended action. लेकिन मशीन जो होता है या एक सिंगल कंपोनेंट होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे ना, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स होंगे। ठीक है, सपोज अगर आप एक एग्जांपल ले ले हैमर का, तो हैमर क्या है? ये भी एक मशीन है ना, सिंपल मशीन है, सिंगल कंपोनेंट मशीन है, उसमें एक ही कंपोनेंट है और उसके जरिए हम क्या करते हैं? हैमर के जरिए हम वो कुछ कर सकते हैं आप जो आप वैसे हैंड से नहीं कर सकते ना। So that is also a kind of machine which is utilizing the energy
पर व्हाट? टू परफॉर्म द इंटेंडेड एक्शन, जो रिक्वायर्ड एक्शन होता है कि हैमर से हम क्या करते हैं। सिमिलरली अगर आप एडवांस पे चले जाए, गाड़ी को ले लें, कार को ले लें, ये भी एक मशीन है ना, उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, अगेन एनर्जी पे ऑपरेट होता है, एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, एनर्जी को यूटिलाइज करता है, और रिक्वायर्ड एक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कि लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सो मशीन इज अ टूल विच विल consist of one or more components and will use energy to perform an intended action. Again, machine जो है based on energy तीन types है ना, either it will develop the energy या convert other form of energy into, या one form of energy into another form of energy, या इस तरह भी मशीन हो सकते हैं which will just transmit the energy from one point to another point, या इस तरह भी मशीनरी हो सकती है which will just utilize the energy। ठीक है। So machine are usually powered by, then based on the type of energy ना, वो मैकेनिकल मशीन्स हैं, केमिकल मशीन्स हैं, थर्मल मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं। सो बेस्ड ऑन द energy through which we can operate the machines, we have different types. Now specifically here we are dealing with the mechanical machineries which are dealing with the which are transmitting or utilizing or developing the mechanical energy. In other form of energy will be converted into mechanical energy, then it will be transmitted into the required point, and there it will be utilized for the beneficial purposes in agricultural fields. So a tool which perform the mechanical work, that is called machine. अगर स्पेसिफिकली अब हम मैकेनिकल साइड पे आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल साइड पे नहीं जा रहे, केमिकल साइड पे नहीं जा रहे, थर्मल साइड पे नहीं जा रहे, नाउ अ टूल which will perform mechanical work, it will be called mechanical machine. For example, hammer जो है that is an example of mechanical machine. या अगर एक ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर क्या करते हैं, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। जहाँ पे इंजन में क्या होता है, फ्यूल्स है ना, तो फ्यूल्स केमिकल्स है, वो कन्वर्ट होते हैं शाफ्ट के मोमेंट को, ट्रैक्टर में जो शाफ्ट का मोमेंट जनरेट होता है, सो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर वो मैकेनिकल एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं किस पर्पस के लिए, फील्ड में, सोविंग के लिए, कटिंग के लिए। ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल मशीन। सो हमारे पास दो टाइप से, सिंपल मशीन है एंड कॉम्प्लेक्स मशीन है। ठीक है। So a machine is a combination of resisting bodies which is used to transform other form of energy into mechanical energy or transmit and modify the available energy to do some useful work. जो भी यूजफुल वर्क है ना, तो आपने इसको लिंक करना है अपने एग्रीकल्चरल फील्ड के साथ। सो मोस्टली अगर हमारे माइंड में फिर एक मेजर मशीन आ रहा है तो वो ट्रैक्टर ही होगा। सो ट्रैक्टर विल कन्वर्ट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मीन इंजन में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी को, जिससे शाफ्ट रोटेट हो जाता है। उससे हम क्या करते हैं, वो शाफ्ट के जरिए वो एनर्जी ट्रांसमिट होता है, मॉडिफाई होता है। मीन उसका डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, स्पीड भी आप चेंज कर सकते हैं, और इसके जरिए जो है हम यूजफुल वर्क कर सकते हैं ना, कटिंग कर सकते हैं, प्लोविंग कर सकते हैं, थ्रेशिंग कर सकते हैं। So in many cases the machine receive mechanical energy, modify it to their requirement. ठीक है। ये बाइसिकल भी है ना, बाइसिकल क्या करते हैं, अगेन वो हम ह्यूमन फोर्स उस पे अप्लाई करते हैं ना, पेडल्स पे, तो वो मैकेनिकल एनर्जी रेयर व्हील में ट्रांसमिट हो जाते हैं और व्हील को जो है रोटेट कर देते हैं। सो सिंपली वी कैन से दैट मशीन इज अ टूल which is either generating the energy or transmitting the energy or utilizing the energy for some useful work. And if we are dealing with the generation, transmission and utilization of mechanical energy, then it will be called mechanical machines. ठीक है। तो मशीन क्लियर हो गया। अब डिजाइन क्या है,
तो डिजाइन इज एसेंशियली अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, आप डिसाइड करते हैं ना अबाउट समथिंग, कि आपको एक प्रॉब्लम है फील्ड में, तो उस प्रॉब्लम को किस तरह सेटिस्फाई करना है विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। देखिए यहाँ पे हम जो टारगेट होगा हमारा वो क्या होगा, वो मशीन होगा। ठीक है, सपोज अगर आपको फील्ड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने वीट की कटिंग करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है, तो ये एक अगर प्रैक्टिकली आप करते हैं ना बाय यूजिंग द ह्यूमन पावर, तो टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा लोग रिक्वायर्ड होंगे, ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो एक प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए आपके माइंड में इस तरह एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना है कि जो हार्वेस्टिंग है, कटिंग है फसल की, ये मैकेनिकल हो जाए। तो आप सोचेंगे ना उसके ऊपर, आप डिसीजंस लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। सो दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, दैट इज डिजाइनिंग। एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, रिमेंबर, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रैक्टिकली जब आप इंडस्ट्री में चले जाते हैं, वर्कशॉप में चले जाते हैं और डिफरेंट चीजों को लेते हैं और उससे जो है छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं, फिर उसको कंबाइन करते हैं, तो आपके पास एक चीज बन जाती है, वो मैन्युफैक्चरिंग है। डिजाइनिंग जो है ये माइंड माइंड में होता है, डिसीशंस होते हैं कि अगर आपको एक प्रॉब्लम है, उसको सेटिस्फाई करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कौन से टेक्नोलॉजी या कौन सी मशीनरी जो है आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सो डिजाइन इज अ हाईली इनोवेटिव process that use the most acceptable, aesthetic, efficient and economical mean to satisfy the need। जिस तरह हमने डिस्कस की ना, सपोज अगर आपको एक प्रॉब्लम है या सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, मार्केट में एक चीज रिक्वायर्ड है, एक जरूरत है लोगों को, दैट इज द नीड। तो बीइंग एन इंजीनियर आप क्या करेंगे, आप बैठेंगे और आप सोचेंगे कि उस नीड को, उस प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या डेवलप कर सकते हैं, क्या डिजाइन कर सकते हैं, कौन सी मशीनरी हम डिजाइन कर सकते हैं, विच विल बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल, जिसकी लुक अच्छी हो, वो इफिशियंट भी हो। ठीक है, जो प्रॉब्लम के लिए आप जो सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं ना, वो इफिशियंट होना चाहिए ना। इस तरह नहीं है कि एक चीज आप बनाए और उसमें 80% लॉसेस हो और 20% वो अपना काम करें, वो इफिशिएंट नहीं होगा, फिर वो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया प्रॉपर। एंड ऑल्सो द थिंग विच यू आर डिजाइनिंग, इट विल बी इकोनॉमिकल। Okay, so now any decision which you are taking for the satisfaction of the human needs, that is called designing, and it will be acceptable, efficient and economical. So the purpose of design is to develop something which will work for the required needs. मीन अगर कोई जरूरत है ना, तो आप इस तरह कोई चीज डेवलप कर लें या डिफरेंट कंपोनेंट्स डेवलप कर लें कि उन कंपोनेंट्स को हम कंबाइन कर लें, असेंबल कर लें और रिक्वायर्ड जरूरत जो है उसको पूरा कर सके। सो इसके लिए जो आप डिसीजंस आप करेंगे, जो स्टेप्स आप उठाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड द डिजाइनिंग। So the engineering design process involves selecting the size and shape. Again, if you have a problem, तो उसकी solution के लिए आप जो component decide करेंगे ना, तो आपने उसका size भी decide करना है, उसका shape भी decide करना है कि कितना size होगा उसका, किस तरह उसका look होगा, कौन से material से हम उसको बनाएंगे, उसकी strength कितना होगा, कितना force वो बर्दाश्त कर सकेगा, उसका cost क्या होगा, उसका operation किस तरह होगा। ये डिफरेंट स्टेप्स फिर इन्वॉल्व होते हैं डिजाइन में। तो इफ वी हैव अ प्रॉब्लम, वी नीड टू डिजाइन अ सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको एक प्रॉब्लम है ना, एक नीड है लोगों को, सोसाइटी को, तो बीइंग एन इंजीनियर आपने उसके लिए सोल्यूशन निकालना है। सो दैट इज डिजाइनिंग। इन अदर वर्ड, टू डिजाइन इज टू formulate a plan to satisfy a particular need and to create something with a physical reality। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल चीज डेवलप कर ले कि वो लोगों की नीड को सेटिस्फाई कर सके। सो दैट इज डिजाइन।
आप लिंक कर सकते हैं ना मशीन और डिजाइन को. नाउ इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम in the agricultural in field and you need to decide, yeah, you need to formulate some mechanical component to satisfy the need of the farmers, that will be called the machine design. लेकिन वो तो हम एग्रीकल्चर के साथ लिंक करें, लेकिन जनरली आप किसी भी फील्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आप कोई कंपोनेंट डेवलप कर लें, सो इट विल बी मशीन डिजाइन. तो कंसिडर फॉर एग्जांपल अ डिजाइन ऑफ अ चेयर. सपोज अगर एक प्रॉब्लम है कि क्लासरूम में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को बैठना है, तो किस तरह बैठेंगे? एक प्रॉब्लम आ गया ना, एक नीड आ गया. उसका सोल्यूशन क्या है कि आपने एक चेयर डिजाइन करना है. आप पर्दली पे आप उसके ऊपर जाएंगे कि चेयर का पर्पस क्या होगा. ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं ना डिजाइनिंग का. इस तरह आप जो मशीन डिजाइन जो लिंक कर सकते हैं मशीनरी के साथ, एग्रीकल्चरल मशीनरी के साथ. लेकिन यहाँ पे ये एक जनरल एग्जांपल है दैट सपोज इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ देयर इज अ नीड फॉर कि स्टूडेंट्स को सपोज बैठना है, लोगों को बैठना है, आपने चेयर डिजाइन करना है, बैठने के लिए कोई चीज डिजाइन करना है, तो देन यू विल हैव टू कंसीडर डिफरेंट फैक्टर. पर्पस क्या होगा? ये चेयर जो आप डिजाइन करें ना, ये किस पर्पस के लिए होगा? ऑफिस चेयर होगा, एजी चेयर होगा, कंफर्टेबल चेयर होगा, हॉट चेयर होगा, डाइनिंग टेबल का चेयर होगा, क्लासरूम का चेयर होगा. प्रॉब्लम क्या है? बैठने के लिए एक चेयर चाहिए, ये तो प्रॉब्लम हो गया. अब उसकी सोल्यूशन के लिए आपने डिफरेंट डिसीजंस लेने हैं. किस पर्पस के लिए यूज होगा? साइज क्या होगा? ठीक है, एडल्ट्स के लिए अपने करना है, चिल्ड्रन के लिए करना है, साइज क्या होगा? कौन से मटेरियल से आप इसको बनाएंगे? वुड से, स्टील से, एंड सी मटेरियल विल इफेक्ट दी कास्ट. कि कौन से मटेरियल से आप बनाएंगे. अगर आप हाई क्वालिटी की मटेरियल से बनाएंगे तो ठीक है, स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगा लेकिन कास्ट भी ज्यादा हो जाएगा, फिर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे. और अगर आप उसका कास्ट कम रखते हैं तो फिर मटेरियल पुअर होंगे, अगेन वो फिर उसकी सेफ्टी ज्यादा नहीं होगी. सो डिजाइन में ये डिसीजंस आपने लेने होंगे कि जो चीज आप डिजाइन करते इट मस्ट बी इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल. इफिशिएंट भी होगा और इकोनॉमिकल भी होगा. एस्थेटिक, उसका लुक किस तरह होगा? डिफरेंट चेयर्स होते हैं ना, उसका लुक क्या होगा? इस तरह नहीं है कि ठीक है स्ट्रेंथ भी उसका ज्यादा है, साइज भी ठीक है, कास्ट भी ठीक है, लेकिन उसकी लुक अच्छी नहीं होती, फिर कस्टमर्स उसमें क्या होते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते. अगेन अगर मैं आपको बताऊं, ये मशीन डिजाइन हम जो करते क्यों करते हैं? एट द एंड ऑब्जेक्टिव हमारा फिर क्या हो जाता है? प्रॉफिट, बेनिफिट. ठीक है, एग्रीकल्चरल के लिए हम मशीन डिजाइन करते हैं, लेकिन एट द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम मैक्सिमम डॉलर ऑब्टेन कर सके ना. तो अगर आपने बेस्ट से बेस्ट चीज डिजाइन की हुई है लेकिन उसका लुक अच्छा नहीं है, फिर भी लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते. सो एस्थेटिक इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो ऑलमोस्ट everyone is involved in design in one way or the other way in our daily lives because problems are posed and they need to be solved. So anywhere अगर आप सोचें ना अपने अराउंड में, अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आपको सोल्यूशन चाहिए, तो उस सोल्यूशन के बारे में जब आप सोचते हैं और डिसीजंस लेते हैं तो वो डिजाइन होगा. सो इफ दैट इज फॉर द मैकेनिकल कंपोनेंट्स, अगर वो मशीनरी साइड पे है तो उसको हम मशीन डिजाइन कहेंगे. ठीक है. So we have a long list of design. So machine design, we are interested in this one. इस तरह बिल्डिंग डिजाइन भी है, घरों की डिजाइन करना है, ब्रिज डिजाइन करना है, ये क्लॉथिंग की जो डिजाइनिंग होती है ना, फैशनिंग जो होती है, ये भी एक डिजाइनिंग होता है ना. लोग डिसीजंस करते, डिफरेंट शेप्स बनाते. सो इफ वी आर डिसाइडिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सम मैकेनिकल कंपोनेंट, it will be called the machine design.
So the technological combination of individual components to make a single tool which is workable for the required needs, या to make some tool or machine for the modification and transformation of energy. डिजाइन तो एक जनरल टर्म है ना, अब स्पेसिफिकली आ जाए कि सपोज इफ यू आर डिसाइडिंग, इफ यू आर टेकिंग डिसीजन for such a component, for such a tool which will deal with energy, then it will be called machine design. And more specifically, अगर हम furtherly specifically हो जाए, so to design या to decide about a tool or a machine which will deal with the mechanical energy, then it is called the mechanical machine design. ठीक है? The application of science and technology to devise new or improved product. Product is anything. मशीन भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, टूल भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है. So any product which you develop for the mechanical energy generation, transmission or utilization, it will be called the mechanical machine design. ठीक है? And the people who are designing are called the engineer. Again, designing is not manufacturing. Remember, that is decision. कि आप जो सपोज एक टूल डिजाइन कर रहे हैं ना, वो क्या है, उसका साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, उसके डायमेंशंस क्या होंगे, मटेरियल्स क्या होगा, उसका लुक क्या होगा, स्ट्रेंथ कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा. So deciding about these things is called design. Machine design involves primarily designing elements so that they may transmit the forces or energy safely and perform their tasks successfully. So machine design जो हम करते हैं, so in machine design हमने ये कंसिडर करना होगा कि एनीथिंग जो आप डिजाइन कर रहे हैं ना, वो एनर्जी को सेफली ट्रांसमिट कर सके या प्रोड्यूस कर सके या यूटिलाइज कर सके, और जिस फंक्शन के लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस नीड के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए आप मशीन डिजाइन कर रहे हैं, वो अपना टास्क सक्सेसफुली परफॉर्म कर लें, then your design will be efficient and effective. ठीक है? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट मशीन डिजाइन का? अच्छा जी, अदनान जैन क्लियर? Adnan Zain, are you there? Munib, are you there? Yes, sir. Achha. So machine design is defined as the use of scientific principle. Now, as we have discussed at the start, that engineering and technology, etc. So, जो बंदा machine design करेगा, so obviously that person will be an engineer. So, machine design is the use of the scientific principle, technical information, and imagination. Because आपने decisions करने हैं ना, so you will have to use your imagination power in the description of the machine or a mechanical system to perform specific function with maximum economy and efficiency. Okay, you will have to use the scientific principle, you will have to use the mathematical knowledge, you will have to use the technical information, you will have to use your imagination power to develop a mechanical system efficiently and effectively. या machine design is the creation of new design or improving the existing one. इस तरह भी है ना कि आप एक न्यू चीज डेवलप कर लें, या अगर एक ऑलरेडी डेवलप्ड चीज है उसमें कोई मसला है, उसको आप इंप्रूव कर लें, उसकी इफिशिएंसी को आप इंप्रूव कर लें. जिस तरह हमारे पास जो व्हीकल्स है ना, उसमें हर साल न्यू मॉडल्स आ जाते हैं. सो मेन पर्पस तो सेम है, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट आ जाता है. सो मशीन डिजाइन सिर्फ ये नहीं है कि आप हर बार एक न्यू चीज डेवलप कर लें, एग्जिस्टिंग में भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. दैट इज आल्सो डिजाइन. वो इनोवेशन होगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना, उसमें आप इंप्रूवमेंट करके
किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लें। या टू आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ वी विल गेट द clean, safe, and economical power. Again, you will have to design something. You will have to decide about something. That is called the machine design. So machine design is creation of new and better machines, improving the existing one. ठीक है, दो साइड्स है ना मशीन डिजाइन की। या आप एक न्यू चीज डेवलप करेंगे, एक न्यू इन्वेंशन करेंगे, ठीक है, to satisfy the need or problem of the society, or you will improve the existing one, कि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट ऑब्टेन कर सके। ठीक है, सो मैकेनिकल engineers or mechanical engineering design associated with the production and processing of mechanical energy. Again, machine design जो ये एक जनरल टर्म है ना, एक ब्रॉड टर्म्स है। So specifically now if you are dealing with those machineries which are generating, transmitting, or utilizing the mechanical power or mechanical force or mechanical energy, then such design will be called the mechanical engineering design. ठीक है, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो आपके माइंड में जो भी कंपोनेंट आ रहा है फॉर द यूटिलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इट विल बिकम अंडर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन। एक सिंपल नट एंड बोल्ट से लेकर हैवी कॉम्प्लेक्स मशीनरीज तक, मैकेनिकल मशीनरीज तक। ठीक है, now as we have discussed that design क्या है, that is the decision making. So at each and every step you will have to decide, you will have to make some decisions about the size, shape, quality, cost, strength, aesthetic. Okay, so at each and every stage of designing you will have to do the decision, and this decision is actually called designing. आप एक पैरामीटर को चेंज करते हैं, दूसरा चेंज होगा, दूसरा चेंज करते हैं, तीसरा चेंज होगा। So you will have to play with these parameters, and at the end you will get efficient and effective result. For example, consider two cars of different makes. They may have both the reasonable cars and serve the same purpose, but the designs are different. दो कार्स होते हैं ना, वो सेम ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करता है। व्हीकल की ऑब्जेक्टिव क्या है, कार्स की ट्रांसपोर्टेशन है ना, कि इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम इसलिए हम ट्रांसपोर्ट कर ले। अब सपोज अगर दो कार हैं, सो दोनों रीजनेबल होंगे, दोनों का पर्पस सेम होगा, लेकिन डिजाइन डिफरेंट है। बिकॉज जब वो डिजाइन हो रहे थे तो डिजाइनर के माइंड में जो डिसीजंस थे वो उन्होंने डिफरेंट ली है। ठीक है, a designer consider different factors and come to certain conclusion leading to an optimum design. And market survey give an indication of what people want. डिसीजन कब से कहां से स्टार्ट होगा जी, डिसीजन कहां से स्टार्ट होगा, जब आपको एक प्रॉब्लम आ जाए, जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, when you need something या when you stuck in a problem, तो आप वहां से डिसीजन स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो कहां से आएगा, यू विल हैव टू डू दी मार्केट सर्वे। आप मार्केट में चले जाए ना, आप देखें लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की नीड क्या है, तो आपके पास आइडिया आ जाएगा कि लोगों को ये प्रॉब्लम है। बीइंग एन इंजीनियर मैंने इसको सेटिस्फाई करना है, मैंने इसके लिए सोल्यूशन ढूंढना है, तो क्या सोल्यूशन ढूंढना है, वहां से डिसीजन स्टार्ट हो जाएगा। क्या चीज आप डेवलप कर सकते हैं, किस तरह डेवलप कर सकते हैं, साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, कास्ट क्या होगा, मटेरियल क्या होंगे, समझ आ रहे, दैट इज डिजाइनिंग।
So existing norm plays an important role. Once a critical decision is made, the rest of the design features follow. मीन जब आप एक क्रिटिकल डिसीजंस लेते हैं ना स्टार्ट में कि ओके फॉर दिस प्रॉब्लम आई हैव टू डिजाइन समथिंग, तो आपने एक डिसीजंस ले ली, अब इसके बाद फिर आप सोचना आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड यू विल डिसाइड अबाउट द कैपेसिटी, शेप, साइज, as we have discussed and other things. So decision is involved at each and every step of the designing. और ये जो डिसीजंस आप लेते हैं ना ये डिजाइनिंग है, ठीक है. A bad decisions lead to a bad design and a bad product. और कहीं पे आपने एक गलत decisions ले ली तो it will lead you to the bad output. and अगर आपने एक good decisions ले ली so it will lead you to the good, better and efficient output. ठीक है. So activity done by engineers to create devices, structures, processes to fill a need, problem solving, optimization, cost reduction and system analysis. Design कब good design होगा? So any activity which you are performing या any technology which you are developing या any device, structure or process which you are developing, वो कब good होगा? वो डिजाइन कब गुड होगा? फर्स्ट, टू सेटिस्फाई द नीड. किस पर्पस के लिए आपने जो चीज डिजाइन की है ना, आया वो पर्पस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर वो प्रॉब्लम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर डिजाइन को तो आप गुड कह ही नहीं सकते ना. आपने जो डिजाइन किया वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं, वो मसला हल कर सकता है कि नहीं कर सकता. अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, नीड सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है? ऑप्टिमाइज मीन बेस्ट. ठीक है, एक काम तो आप कर सकते हैं ना, रफली भी कर सकते हैं और बेस्ट भी कर सकते हैं. तो आपने जो डेवलपमेंट किए हैं वो तो सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन किस तरह कर रहा है? गुड, बेटर, बेस्ट. द एक्शन ऑफ मेकिंग द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ अ रिसोर्स. सपोज अगर आपने जो चीज डिजाइन की है या जो रिसोर्स है आपके पास या जो सोल्यूशन है आपके पास, वो प्रॉब्लम को कितने लेवल तक इफेक्टिवली सेटिस्फाई कर रहा है, इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं. अगर इफेक्टिवली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, मीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है लेकिन इफेक्टिवली नहीं कर रहा, वो गुड डिजाइन नहीं होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट रिडक्शन भी है. ठीक है, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, इफेक्टिवली भी कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट इतना ज्यादा है कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. अगेन इट विल बी नॉट अ गुड डिजाइन. एंड सिस्टम एनालिसिस, कि जो चीज आपने डिजाइन की है वो कब फेल हो सकता है, कितने फोर्सेस पे, कितने स्ट्रेंथ पे वो फेल हो सकते हैं, और अगर वो फेल हो जाए फिर क्या होगा? मेंटेनेंस पॉसिबल है कि नहीं है? एनवायरमेंटल, सोसाइटल एंड ह्यूमन डैमेज तो कज नहीं कर रहा. ठीक है, इस तरह भी है ना कि अगर एक सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं, इफेक्टिव भी है, कॉस्ट भी उसका कम है, लेकिन सपोज अगर वो ह्यूमन को या इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो, ह्यूमन फ्रेंडली ना हो, अगेन इट विल बी नॉट अ गुड डिजाइन. सो कंक्लूजन ये है कि जब भी आप डिजाइन करते हैं सो एट ईच एंड एवरी स्टेप यू विल हैव टू टेक डिसीजन. ठीक है, एंड if you are studying this course, so you people must have the background knowledge of the drawing, the engineering mechanics, kinematics जो आप लोगों ने स्टडी की है, मटेरियल इंजीनियरिंग जो आप लोगों ने स्टडी की है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ठीक है, मीन दीज आर दी प्री रिक्विजिट्स. अगर आप मशीन डिजाइन के साथ डील करते हैं ना, अगर आप कोई मशीन डिजाइन करते हैं तो आपके पास ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए, काइनेमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, जो मटेरियल आप सेलेक्ट करेंगे ना डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट्स के लिए, तो यू मस्ट हैव सम बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द मटेरियल्स, उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में.
You will have, be also able to do the uh, we can say that forces analysis. अगर एक स्टील है उस पे आप 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर क्या होगा. अगर आयरन है उस पे आप 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई, उसका बिहेवियर क्या होगा. सो यू मस्ट हैव सम बेसिक नॉलेज. एंड आल्सो यू विल हैव द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. जो इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो उसका भी ये बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए फॉर द मशीन डिजाइन. ठीक है. इट इज द बेसिक नॉलेज इन मैथमेटिक्स. बिकॉज जब आप कोई फार्मूला के साथ डील करते हैं, कोई इक्वेशंस के साथ डील करते हैं, ठीक है, कंप्यूटेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, सो मैथमेटिक्स उसमें इन्वॉल्व होगा. ठीक है. डिराइवेटिव्स है, इंटीग्रेशंस है, बेसिक प्लस माइनस है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है. ठीक है. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वर्कशॉप, ड्राइंग एंड कंप्यूटिंग, ये बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द मशीन डिजाइन. And see, as we have discussed that designing is a decision making process. So first you will look for a problem. मार्केट में जाएंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, नीड क्या है. तो फिर आप सोचेंगे ना कि उस नीड को आप किस तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो अगर ये जो प्रॉब्लम सेटिस्फेक्शन है ना, अगर ये आंसर आपके पास आ जाए, आपका डिजाइनिंग स्टार्ट हो गया. तो एट दैट टाइम आपने ये देखना है कि आपने जो सोल्यूशन डिसाइड किया हुआ है वो नीड को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं. अच्छा, अगर ऑलरेडी मार्केट में कोई सोल्यूशन अवेलेबल है और आप एक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो क्या वो कॉम्पिटिटिव होगा. अगर ऑलरेडी मार्केट में एक मोबाइल फोन अवेलेबल है ना और आप एक दूसरा मोबाइल फोन डेवलप कर रहे हैं, तो आया ये जो दूसरा आप डेवलप कर रहे हैं वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल मोबाइल फोन के साथ कॉम्पिटिटिव होगा कि नहीं होगा. इस तरह नहीं है कि आपका डिजाइन जो है वो बैड हो जाए. आपने ऐसी न्यू फीचर्स डालने हैं ना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो. एंड इज इट इकोनॉमिकल, जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करें वो इकोनॉमिकल होगा. कैन इट बी रिडली मेंटेन. सपोज अगर जो मशीनरी आप डेवलप कर रहे हैं ना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई डैमेज आ जाए, तो क्या वो मेंटेनेबल होगा कि नहीं होगा या रिप्लेसेबल होगा. विल इट बी सेल एंड मेक अ प्रॉफिट. लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे. ठीक है. तो ये चेकलिस्ट होता है डिजाइनर के लिए, मशीन डिजाइनर के लिए, कि जो भी मैकेनिकल टूल आप डिजाइन कर रहे हैं, सो यू विल हैव टू look into these 5 points that well it will satisfy the need. ये कॉम्पिटिटिव होगा कि नहीं होगा, इकोनॉमिकल होगा कि नहीं होगा, मेंटेनेंस की क्या कॉन्सेप्ट होगा, और लोग उसमें इंटरेस्ट होंगे कि नहीं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक प्रॉब्लम है पावर को ट्रांसमिट करना, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक आपने पावर ट्रांसमिट करना है, तो ऑलरेडी डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है, शॉफ्ट्स अवेलेबल है, पुलीज अवेलेबल है. अब सपोज आप इस तरह बेल्ट डिजाइन कर लें, ये तो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं लेकिन ये ऑलरेडी अवेलेबल डिजाइन के साथ कॉम्पिटिटिव है कि नहीं. तो आपने देखना है ना कि अगर इसकी इफिशिएंसी ज्यादा है, कास्ट कम है, तो ये कॉम्पिटिटिव होगा. अगर एक पुली खराब हो जाए तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं. अगर बेल्ट खराब हो जाए आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं. और अगर लोग उसमें इंटरेस्टेड है, कस्टमर्स हैं, सो एट द एंड यू विल गेट प्रॉफिट. ठीक है. So these are the major areas in the machine design. That first you will have some concept for the satisfaction or solution of a problem. Then you will do the strength analysis. ठीक है. मशीन के साथ डील करते हैं ना, तो हर चीज की स्ट्रेंथ को आपने देखना होगा, इसके फेलेवर्स को देखना होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखना होगा. ठीक है. मटेरियल सिलेक्शन, जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट आप डिजाइन कर रहे हैं ना उसके लिए मटेरियल सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट. कौन से मटेरियल से बनाएंगे, स्टील से,
आयरन से, एलाइज से, अपीयरेंस उसका क्या होगा, लुक क्या होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरेबिलिटी, सपोज अगर ये चेन आप बना रहे हैं ना, चेन, तो अगर ये चेन आप इंस्टॉल कर ले पर पावर ट्रांसमिशन, तो इससे आप कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता है, इसका स्ट्रेंथ एनालिसिस क्या होगा, कितने पावर पे या कितने फोर्स पे ये फेल हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, कौन से मटेरियल से आप इसको बना रहे हैं, स्टील से या आयरन से या एलाइज से, इसका अपीयरेंस क्या होगा। देखिए ना, इस पुली का जो अपीयरेंस है, लुक जो है, एस्थेटिक, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, कहाँ पे बनाएंगे, वर्कशॉप कहाँ पे होगा, आया ये जो आप बनाएंगे ना, ये आपके लोकल एरिया में पॉसिबल है कि नहीं। इस तरह नहीं है कि इसके बनाने के लिए फिर आपने बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़े, फिर वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो जब भी आप किसी डिजाइन के बारे में सोचते हैं, तो आपने उसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी को भी देखना है कि आया ये पॉसिबल है कि नहीं है। इकोनॉमी, सेफ्टी है, कास्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप ये चेन बनाए तो इससे नॉइस तो प्रोड्यूस नहीं होगा, शोर अक्सर प्रोड्यूस होते हैं ना बास कंपोनेंट से, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते। फिर रिलेबिलिटी एंड लाइफ, मीन वर्किंग ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट फेलेवर, विदाउट फेलेवर इसकी चांसेस कितने हैं वर्किंग की, इसको रिलेबिलिटी कहते हैं। लीगल कंसिडरेशंस होते हैं, लीगल कंसिडरेशंस, ठीक है। कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो है चीज आप डिजाइन करते हैं। सो एनी मैकेनिकल कंपोनेंट विच यू आर डिजाइनिंग फॉर द मैकेनिकल मशीनरीज, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अगर हैं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसका कंसेप्ट क्या है। मैकेनिकल कंपोनेंट अगर डिजाइन करें, सो यू विल हैव टू डू द स्ट्रेंथ एनालिसिस, you will have to select the proper material, what will be the aesthetic or look, and either it will be manufacturable or not in the local area, what will be its environmental effects, what will be the working of the element or working of the machine without failure. So again, you will have to do the decision, and these decisions are called designing, ठीक है।